अब तक आपने देखा कि 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह और बोरो 2 चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा तथा अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद के बीच जुबानी जंग। अब ये बात यहां पर ही खत्म नहीं हो रही है। अशरफ खान ने भी पलटवार करते हुए राजू सिंह को जवाब दिया। साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ता मानस सिंह ने भी करारा जवाब दिया। इस मौके पर अशरफ खान ने सबूत के साथ मीडिया को कहा कि राजू सिंह ने कहा कि बोरो 2 चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा 91 नंबर वार्ड में काम करते हैं, पर उनका नाम तक नहीं आया। मगर अशरफ खान ने बताया कि 91 नंबर वार्ड में बहुत जगह पे एडीडीए के तरफ से भी काम हुआ है। बोर्ड में राजू सिंह का नाम है। साथ ही उन्होंने बोरो 2 चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा पे लगाए गए सारे आरोपों को झूठ करार दिया। आइए जानते हैं इस विषय पर अशरफ खान का क्या कहना है। साथ ही मानस सिंह ने भी राजू सिंह के इस तरह के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वार्ड में काम नहीं होगा तो लोग तो सवाल करेंगे और कुछ नेताओं की वजह से हम टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के अभियान को बिगड़ने नहीं देंगे और ना ममता बनर्जी के हाथों को कमजोर होने देंगे। आइए जानते हैं कि इस विषय में मानस सिंह का क्या कहना है। प्रथमेই सर्वप्रथम করেছি কালকে 91 ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আমাদের কাউন্সিলর কালকে যে বড় চেয়ারম্যানের উপর যে আরোপটা লাগিয়েছে আমরা 91 তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রথমত, দ্বিতীয়ত রাজু সিং কাউন্সিলর আপনারা রিপোর্টার, আপনারা খবর নিন। 2 বছর ধরে বড় চেয়ারম্যান হওয়ার পর উনি বিরোধ করার পর আজ পর্যন্ত মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কোনো বোর্ড মিটিং এ উনি প্রেজেন্ট থাকেননি। যদি প্রেজেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ডের কি কাজকর্ম আছে বা কি কাজকর্ম ডিউ আছে সেটা ওখানে তুলে ধরবে কে, বলবে কে, হবে কিভাবে, সেটা প্রথম প্রশ্ন করুন। রাজু সিং চেয়ারম্যানের উপর বড় চেয়ারম্যানের উপর আরোপ লাগিয়েছে উনি নাকি এখানে ওনাকে না জানিয়ে বিভিন্ন প্লটিং করছে। আমি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলছি, রাজু সিং কাউন্সিলর হবার আগে, কাউন্সিলর হবার পর উনি কি কাজে যুক্ত আছেন সেটা আপনারা এনকোয়ারি করে দেখুন। উনি নিজে জমি মাফিয়া, জমির কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন জায়গায় উনি পয়সা খেয়ে তাদের কাজ করেনি, রেজিস্ট্রি করে না। তারপর তারা যখন বলতে আসে তাকে নিজের পাওয়ারের উপর তাকে হুমকি দেয়। উনি যদি বলছেন বড় চেয়ারম্যান প্লটিং করছেন আমি জানি না মানে হচ্ছে 91 ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ডিসক্রেডিট, যে পাবলিক রিলেশন নেই বলে উনি এই খবরগুলো রাখতে পারেন না বা ওনাকে কেউ রাখে না বা ওনার উপর কেউ ভরসা করে না। এখানে ওনার বক্তব্য থাকলে তো হবে না। উনি তো জবে থেকে যে উনি 7 দিনে 7টা পোস্ট করেন। উনি আজকে বলেন আমি ব্লক প্রেসিডেন্টকে হাঁটিয়ে দেবো, উনি সবাইকে বলে বেড়ান আমি এমএলএ কে সরিয়ে দেবো। উনি তো সব সময় সবকিছুর ওপর একটা আর্গুমেন্ট লাগাতেই থাকে, এ খারাপ ও খারাপ, আমার সঙ্গে যারা থাকবে ওর সাথে কথা বলবে না। এডিডিএ থেকে আমার মনে হয়, আমি যতটুকু জানি এডিডিএ থেকে এখানে একটা হাই মাস্ট লাইট হয়েছে চার্জে, এবং চার্জে সে হাই মাস্ট লাইটটাতে যে ফলকটা লাগানো হয়েছে তাতে কাউন্সিলরের যদি নাম না থাকে তাহলে আমরা এই মুহূর্তে সবাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দেবো। উনি কাউন্সিলর হবার পর উনি নিজেকে বিশাল মহান নেতা মনে করেন, সবার উপরে মনে করেন, কাউকে নিয়ে চলার ওনার কোনো ক্ষমতা নেই। যে কোনো দল চলে কর্মীদের উপর ডিপেন্ড করে, উনি কর্মীদের নিয়ে চলতে চান না বা চলতে পারেন না বা তাদের উপর হুইপ জারি করেন, ওনার চলার কোনো ক্ষমতা নেই। পার্টিকে কিভাবে চালাতে হয় উনি জানেন না। যারা কাউন্সিলর ভোটের আগে ওনাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল গোটা 91 তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, তাদের মধ্যে 90% ওনাকে ছেড়ে চলে এসছে, এবং যখনই ছেড়ে চলে আসে তখনই তাদের উপর একটা এলিগেশন লাগায় তারা চোর, তারা ওইখানে চুরি করেছে, এই করে, তার কাছে কোনো প্রুফ নেই। এটা দলাদলির কোনো ব্যাপার নয়। উচ্চ নেতৃত্বের কাছে আমার আবেদন, রাজু সিং কি করছে? রাজু সিং প্রকারান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষতি করতে চাইছে বা 91 ওয়ার্ডের যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সংগঠন আছে সেটা প্রকারান্তে উনি নষ্ট করতে চাইছেন। এর পেছনে কিন্তু গভীর চক্রান্ত আছে, এবং কি চক্রান্ত কাউন্সিলর মোটিভেশন কিচ্ছু না। কাউন্সিলর নিজেকে বিশাল মহান নেতা মনে করেন। উনি 7 দিনে 7টা পোস্ট হোল্ড করতে চান আমার মনে হয়।
উনি আজকে তাকে তাড়াবো, কালকে ওকে তাড়াবো, কালকে ওকে তাড়াবো। উনি যবে থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন তবে থেকে ওপর নেতৃত্বকে সবসময় আমাদের এমএলএ বড় চেয়ারম্যান সবার বিরোধিতা করে এসছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমার নাম মানস সিংহ, 91 ওয়ার্ডের तृणमूल कांग्रेस কর্মী। हमारे यहाँ के जो 91 नंबर वार्ड के जो काउंसलर हैं वो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही है जिसको एज ए पार्टी कार्यकर्ता 91 नंबर वार्ड का जो हम लोगों को पसंद नहीं आया। पहली बात तो है कि उनके दो चार बात जो है उनका दो चार बात है, वो दो चार बात कहीं से भी कोई मतलब उसका प्रूवेंस नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात कही कि हमारे वार्ड में अगर कोई भी काम होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलता है। तो पार्षद, हमारे यहाँ के पार्षद साहब को बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ पर अगर कुछ बोर्ड वोर्ड लगता है तो उनका नाम नहीं रहता। जैसे हम सुने आज उनका नाम नहीं रहता। तो ये पार्टी ऑफिस है गिरजापुरा, यूथ ऑफिस है, मेरा सामने में चर्च है। हमारे चेयरमैन साहब ने भी इसका जिक्र किया कि 150 साल पुराना हमारा चर्च है, इसका इनोग्रेशन हुआ है न्यू, और यहाँ पर एडीटीए की तरफ से हुआ। तो आप जाइए अभी यहाँ से, और मैम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर में जाके देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड में उनका नाम है कि नहीं है। तो इलाका में अगर डेवलपमेंट होगा तो उनका नाम रहेगा। अगर इलाका में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कहीं पर बोर्ड नहीं लग रहा, उनका नाम नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद है, क्योंकि वो खुद डेवलपमेंट का काम नहीं करवा पा रहे, इसीलिए बोर्ड नहीं लग रहा। बोर्ड नहीं लग रहा तो नाम कहां से आएगा? ये पहला चीज है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि हम लोग का यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे यह है कि आपने काम क्या करने की कोशिश की, जहां पर आपको ऑब्जेक्शन डाला गया, यहाँ पर जहां पर आपको रोका गया? ये बात आप लोग मीडिया वाले हैं, उनसे पूछेगा। मेरा सवाल है उनसे कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा कार्यकर्ताओं की ओर से। तो ये मैंने मतलब कि मेरा सवाल है कि कौन सा काम आप क्या ऐसे 91 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट करना चाहा जिसको यहाँ के कार्यकर्ता ने ऑब्जेक्शन किया, रोका, या फिर उसको नहीं करने दिया? तो वो बात सवाल वो क्लियर करें इनका। हवा में बात करने से कुछ होता नहीं है। और 3 साल होने गया है, आप लोग उनसे पूछिए कि अभी तक का एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोर्ड मीटिंग होता है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो आसनसोल में होता है, वो कितने बोर्ड मीटिंग अटेंड किए हैं। डेवलपमेंट का काम, जैसे अभी एक सवाल आया था हमारे नियाज भाई के पास में कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैसा कितना आ रहा नहीं आ रहा। तो एज ए काउंसलर का एक जिम्मेदारी होता है कि अगर आपका वार्ड में फंडिंग नहीं आ रहा है तो उस फंडिंग को निकाल कर लाना है। यहां पर जितने हम लोग बैठे हुए हैं सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो हम लोगों का किसी का भी अथॉरिटी नहीं होता है कि हम लोग जाकर वहां पर बोर्ड मीटिंग में बैठकर सवाल उठाएं। कारपोरेशन में तो जाने का हम लोग का अधिकार नहीं है। तो उनसे जाकर एक सवाल कीजिए कि 3 साल में कितना बोर्ड मीटिंग उन्होंने अटेंड किया। और रानीगंज में जब उन्होंने काउंसलर जब लड़ना के लिए जब उन्होंने तैयारी की कि काशीपुर डांगा और चांद मोहल्ला का रास्ता सबसे पहला मेरा टारगेट होगा, मेरा अगर कुछ काम हुआ तो सबसे पहला टारगेट यही होगा, क्योंकि 15 से 20 साल हो गया वो रास्ता कोई भी उसका डेवलपमेंट नहीं है। तो उनका पहला टारगेट था। उनसे जाकर पूछिए कि आज तक आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत दूर की बात है, आपके घर के सामने में रानीगंज बोरो 2 है, वहां के चेयरमैन और वहां के जो इंजीनियर हैं उनसे कितना बार उनका गुफ्तगू हुआ या कन्वर्सेशन हुआ कि इस रास्ता का क्या पोजीशन है, इस रास्ता कितना लंबा मीटर है, इस रास्ता का बजट क्या है। मैं जहां तक समझता हूं, मेरा जितना दिन राजनीति का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऑलरेडी हम लोग इस रास्ते को लेकर बहुत बार बैठे हैं। 68 लाख रुपीस का टोटल बजट है 2 रास्ता बनाने का। और अगर काउंसलर को इतना बुद्धि होता तो 3 जगह से वो पैसा लाकर ये काम कर सकता था। आज अगर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहा मेरे पास में पैसा नहीं है, तो वहां पर से वो 20 लाख रुपया 22 लाख रुपया कॉर्पोरेशन के पास में है ही है। 20 लाख 22 लाख वो डीडी से मैनेज कर सकता था, और 20-22 लाख रुपया वो एमपी फंड से भी कर सकता था। तो 65, 68, 70 लाख रुपया तो यूं ही हो गया। तो इंसान का काम करने का जो जुनून और इच्छा होना चाहिए। आप काउंसलर बन गए हैं, आप काउंसलर बन गए, लेकिन अब काम करने की इच्छा आपको नहीं है। अगर होता तो ये 3 जगह से आप फंड लाकर 68 से 70 लाख रुपीस का आप आराम से कर सकते थे। देखिए बात, आप जब हमको चूटी काटिएगा, आप जब हमको सवाल उठाइएगा, तो आपका भी कैरेक्टर बहुत ही नीट एंड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो मेरा भी कैरेक्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर पार्षद ने हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर में जो उंगली उठाया है कि इलीगल काम करवा रहे, इलीगल ये करवा रहे, तो मैं रानीगंज का नहीं, मैं गिरजापाड़ा का हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है कि उनका जो बैकग्राउंड है हमारे पार्षद साहब का, पार्षद का बैकग्राउंड क्या है। तो उस बैकग्राउंड से रहकर आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तो दोषी हैं भाई, आप भी तो दोषी हैं कहीं ना कहीं। ये दोषी का कारण क्या है? इस दोषी का कारण देखिए, आप सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, ये दोषी का कारण
हम इस सवाल को समझे नहीं कि दोषी का कारण। इस बात को बहुत जोर दिए हैं, यहाँ पर जो इलीगल काम हो रहा है वो काम का क्या होगा कि मलाई कोई खौर खा के निकल जा रहा है और भांडा मेरे सर पर फूटा जा रहा है, तो मलाई कोई और खाकर निकल जा रहा है। इस बात से उनको बहुत तकलीफ है, तो मलाई शायद वही खाना चाहते थे। यहाँ पर भी कोई भी कहा जाता है कि यहाँ पर भी कुछ भी काम होगा तो हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो आपके पास में इंफॉर्मेशन होगा क्यों? आपके उंगली के नाखून के हिसाब से आपको वार्ड को जानना चाहिए था कि मेरा वार्ड में कहां पर क्या काम हो रहा है, किसी से। तो आपका तो जन संयोग है ही नहीं है, आपका तो लोगों के साथ में मेल मोहब्बत है ही नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए, अगर 3 नंबर धावड़ा में या फिर वहां पर काशीपुर डांगा में कोई भी काम होता तो फोन आता है हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग का कार्यकर्ता को पब्लिक का टच है, पब्लिक के साथ में मेल मिलाप है। तो आपका तो नहीं है, इसके साथ साबित होता है कि पब्लिक भी आपको नहीं बताता है कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन एक देखिए बात ऐसा है कि देखिए चेयरमैन साहब ने जो बात कहा उनसे, और पार्टी जो बात कहा वो सार्वजनिक, हमारे काउंसिलर साहब ने इस चीज को सार्वजनिक किया प्रेस मीडिया के माध्यम से। तो जब आप हमको ऊपर सार्वजनिक, जब मेरे ऊपर में सवाल उठाइएगा, मेरे ऊपर उंगली उठाइएगा, तो कहीं हम पहले बताया कि आपको भी कैरेक्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन साहब को लगा ऐसा। अरे आप अगर एक वार्ड के काउंसिलर है तो 11 वार्ड के चेयरमैन, उनको ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनकी तो अच्छाई है, तो उन्होंने बहुत सारा पेपर, बहुत सारा कागज सबमिट नहीं किया उनके खिलाफ में, जो उनके पास में है ऑलरेडी। हम लोग को मालूम है, हम लोग को मालूम है कि आपने कहां पर किसका जमीन, देखिए हम किसी का रोजी रोजगार के ऊपर सवाल उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसका क्या जमीन का आपने एडवांस लिया, किसका क्या जमीन देने का आपने वादा किया और किसको क्या जमीन नहीं दिया, ये लोग भी हैं, ये लोग भी चेयरमैन का पास में जाते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, तो कागज पत्र जमा देते हैं। तो चेयरमैन साहब का तो बहुत अच्छा ही है कि उन्होंने पेपर सबमिट नहीं किया, तो वो जहां पर कंप्लेन कर रहे हैं, जहां पर कंप्लेन कर रहे हैं, ये कागज पत्र लेकर चेयरमैन साहब अगर वहां पर कंप्लेन कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक काउंसलर रह पाएंगे। वो गलत इंसान का शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का डेट में अगर काउंसलर से डायरेक्ट कोई लड़ने जाएगा तो नहीं से उसको माथा में हाथ चाहिए, इसीलिए चेयरमैन के पास में जा रहे हैं, हम लोग के पास में भी आते हैं। कहीं बोलिएगा तो उसका ही प्रेस मीट करवा देंगे सब लोग। आपका क्या व्यक्तिगत लड़ाई है, क्या व्यक्तिगत चीज है, वो आपका मैटर आप समझिए, लेकिन आपने एक बात जो कही कि यहाँ के कार्यकर्ता उसको काम करने में, डेवलपमेंट का काम करने में उनको सहायता नहीं कर रहे, उसको मदद नहीं कर रहे, तो भैया क्या डेवलपमेंट का काम आपने शुरू किया, क्या डेवलपमेंट का काम आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर आए रानीगंज 91 नंबर वार्ड के लिए, वो बात आना होगा आपको। ये मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आया था, काशीपुर डांगा का और चांद मोहल्ला के रास्ता को मैं लेकर आया था, इतना लाख का बजट था, यहाँ का लड़का मुझे इग्नोर किया। तो यहीं पर तो सामने में, यहाँ पर देखिए आप जाइए, ये सामने पे चर्च में देखिए बोर्ड भी लगा हुआ, एक बोर्ड नहीं 3 बोर्ड लगा हुआ, तीनों बोर्ड में उनका नाम, तो बुलाया कैसे नहीं जाता? आप खुद गुस्सा से, नाराजगी से किसी का फोन नहीं उठाइएगा, किसी को इग्नोर कीजिएगा, तो फिर कोई कैसे आप जाइएगा? कह रहा है कि उसको हर बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है, तो उसका तो लीगल प्रोसीजर से बुलाया जाता है। तो चेयरमैन साहब से पूछिएगा उनसे कि जो चिट्ठी उनके पास में गया, उनके पास में इश्यू हुआ चिट्ठी, तो चेयरमैन साहब तो चिट्ठी पहुंचाने जाते नहीं है, और चेयरमैन साहब का तो इशू होता नहीं हो, तो वहां का इंजीनियर, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालता है वो उसको चिट्ठी इशू करेगा, तो वो चिट्ठी भी देखा सकता है। अशरफ खान है और मैं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें, इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।